हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, ऑली बोर्ड पे एसबीआई पीओ प्री का लाइव मॉक चल रहा है। अगर आपने अभी तक अटेम्प्ट नहीं किया है तो जाइए अटेम्प्ट कीजिए। ये मॉक आज शाम 7 बजे तक ही लाइव रहेगा। अगर आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो ऑली बोर्ड की ऑफिशियल साइट olyboard.in या तो फिर ऐप के थ्रू इस मॉक को अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैं भी जस्ट अटेम्प्ट करने ही जा रहा हूँ, तो आइए मॉक स्टार्ट करते हैं। पहला ही क्वेश्चन आपका एरर डिटेक्शन से है। तो key protein source including pulse, eggs and meat and fish continued to register worryingly high levels of inflation that surely cannot bode well for the wider population's nutrition well-being. वाइडर populations न्यूट्रिशंस ये नहीं, ये गलत लग रहा है। यहाँ डी आपका आंसर होगा। The manner in which a Delhi police team traveled to Bengaluru and took her into custody, apparently without following the guidelines laid down by the laid down by Delhi High Courts on interstate arrest, mark as a new law in the display of perversity and high-handedness in law enforcement. ठीक है। The manner in which a Delhi police team traveled to Bengaluru and took her into custody, apparently without following the guidelines laid down by the Delhi High Court on interstate arrest, marks on a laid down by the Delhi High Court, शायद laid down होना चाहिए। It appears that the main charge against her in that against her in that she edited a Google document shared among activists, including global climate change icon Greta Thunberg. इसमें तो कहाँ है भाई? एरर तो लग नहीं रहा। It appears that the main charges against her is that she editing. No error होगा। As a result, above the world many above the world, ये तो यही गलत लग रहा है। As a result, above the world, नहीं यही गलत होगा। All all agencies should use modern technology to inform citizen about of earthquake नहीं है। About benefits ये भी नहीं है। ए का किसी के साथ मैच नहीं हो रहा है। ए का डी तो हो रहा नहीं। फिर दूसरा ऑप्शन बी का एफ। इट वॉज वेरी कंसिडरेट ऑफ हैरल्ड टू send his mother-in-law a bucket of flowers on her birthday. ये तो सही है, बी का एफ हो रहा है। सी का ए। रिसर्च शो डेट when we think about how or our action can benefit others are more motivated. So yeah, बी एफ सी ई। सिर्फ वन को एक ही क्वेश्चन। One of the books I am reading at the moment is John Gabriel and the Scientist. I am only up to page 190, but even early I have become excited. नहीं, टायर्ड होना चाहिए, क्योंकि एक्साइटेड होता तो 190 तक तो नहीं।
through the scientist profiled in the book, highly productive by the intuitive definitions of this term. The daily pace of their work was extra slow, incredibly slow. First and second होगा sir. By any modern standard of the professional effectiveness, Galileo probably has famed insight about the period of the pendulums in 1584 while a medical student in peace observing swinging chandelier in the cathedral. He did not finish working out the details experimentally, however, until 1602. He was occupied in the interim by the numerous other active numerous other tasks नहीं other activities, including the handling depth of the ठीक है after death in 1951 and the writing of a novel on military fortifications, a topic to great extent in the during the period of Galileo, was the occupied part of the succinct happy life in which studies literature and poetry, attended the theatre regularly, and continued to play the इसका सेकेंड थर्ड तो ऑप्शन है नहीं, ओनली थर्ड होगा फिर. And continue to play the lute to a high standard. He was not grinding away. ये समझ में नहीं आ रहा है, इसको स्किप कर दे. ये पैसेज है, पैसेज लास्ट में टाइम बचेगा तब करेंगे. क्या which of the following word can replace the procrastination? ये procrastination तो हो जाएगा postponement. Which of the following word can aptly fill the blank दिया हुआ है क्या? हाँ, whether you work for yourself, if तो नहीं होगा. Whether you work for yourself or for someone else. Yourself but for someone else नहीं होगा. You work for yourself nor for someone else. Nor for someone else, ये होगा आंसर इसका. Nor for someone else, consider yourself as the CEO of that day. सही है. Exhibit. The rare coin is an exhibit in the University Museum. सही है. Before baking the cookies, she decided to exhibit in the oven. He will exhibit his talent in the live performance. इसका तो फर्स्ट एंड थर्ड लग रहा है. ग्रीन. ठीक है. द अलार्म क्लॉक ग्रीन्ड टू वेक मी अप. ग्रीन तो ये नहीं होगा.
When she heard the good news, she could stop grinning. ग्रीनिंग मतलब ब्लशिंग ही होता है. The mischievous grin told me she has a secret. सही है. इसकी हंसी होता है, मुस्कान. Assume. She automatically assumed that I will help her. We shall assume our responsibility. Everyone assumed. इसका तो सब लग रहा है. All. फिर से एरर का क्वेश्चन. A US-based startup has made its. ये तो गलत यहीं पे लग रहा है. US-based startup has made it is क्या है? It is नहीं होगा, it's होगा यहाँ पे. यही गलत है. क्या दिया है किस टाइप से भाई? दो मैच द कॉलम वहाँ पे, एक यहाँ पे. क्या है? लैंडिंग फी पेज. Landing fees paid by airlines are determined by the weight of the aircraft. Weight of the aircraft. Handling costlier and bigger aircraft. ए का ई लग रहा है. ए का ई ऑप्शन ये रहा है, तो ए का weight of an aircraft and do not vary according to the time of the day. ए का डी भी लग रहा है. Airline is said to maintain historicity of a particular slot if it is able to operate flight during the given slot. बी के साथ एफ है. बी के साथ इसी में एफ है, सिर्फ यही आंसर है. A friend recently visited his doctor because of a bad cough that has lasted a few weeks. ए का डी होगा. ए का डी कहीं है दिया होगा. ए का डी ये रहा, सिर्फ इसी में ए का डी है, तो आप आगे चेक करने का भी ज़रूरत नहीं है. आप salience and illustrated by the properties that make a future salient. ये तो नहीं होगा. बी कहीं पे दिया नहीं है, डी दिया है ना. वन ऑफ द प्रॉब्लम डेट डी ऑप्शन, डी से स्टार्टिंग दिया. लायम्स वर्ड्स एंड इज द इनकंसिस्टेंसी ऑफ सैलियंस. डी ए तो हो रहा है, डी ई नहीं हो रहा है. अब ए के बाद से इलस्ट्रेटेड बाई एंड बाई एंड, ये गलत हो गया. EA, one of the problem that surround the concept of salience. यही सही है. Salience as illustrated by Liam's Watson is the inconsistency and the apparent arbitrariness of the properties that make future salient. सही है. The EU is the world's largest exporter and importer of the goods and service
taken together the largest foreign direct investor and the most important destination for foreign direct investment. ये तो सीक्वेंस वाइज ही लग रहा है, ए बी सी डी ऑप्शन दिया है कहीं क्या? यही ऑप्शन है। द मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया। देखो डी हो जाएगा, केरला इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर, मतलब DBA, DBA है, DBA। DBA इसमें तो है लेकिन ई से स्टार्ट किया, नॉन डी ई, डी के बाद ई है ना। केरला नॉन एज गॉड ऑन कंट्रीज is one of the most popular tourist destination in India with the rich culture, heritage and natural beauty. Yes, a Nobel Prize in Literature for the most masterful storytelling. A Nobel Prize in Literature received a Nobel Prize in Literature, मतलब ई के साथ ए होगा, ई के साथ ए यहाँ पे है, ई के साथ ए ये नहीं है, ई के साथ बी है, ई के साथ ए है, ये हो जाएगा। बी के साथ स्टार्ट किया है फॉर हिज, ये तो गलत, ये भी नहीं है। ई ए इसमें है नहीं, ये भी गलत है। ई ए इसमें है। डी, कोलंबियन राइटर गैब्रियल रिसीव अ नोबेल प्राइज इन लिटरेचर in 1982 for his master storytelling. सही है। अब 3 मिनट बचा है। पैसेज 3 मिनट में तो मुश्किल है, बट देखते हैं कौन कौन सा और कोई क्वेश्चन है। हाँ, द पैसेज डिस्क्राइब व्हाट डज वर्ल्ड्स ब्लॉब। ब्लॉब मीन्स, ब्लॉब कहाँ है भाई? ब्लॉब ये रहा। Don't let your to-do list morph into a blob list. Don't let your to-do list morph in a blob list. A blob is a vase. The passage describes is a vase. The passage describes the word delay list हो जाएगा। What do you understand by don't let your to-do list in the morph the bob list? One need to be specific about one task and not waste time around the undefined task. One can waste as much as time as one want. A person cannot save times for the activities when working professionally. One should try wasting one's times. It feels amazing. गलत है। A person should spend a fraction of their times helping other. नहीं। One can waste as much time as one wants. नहीं, यही होगा। One needs to be specific about one task and not waste time around the undefined task.
What does measuring a task urgency play? Task urgency play. Which of the following sums up the first paragraph correctly? Most people walk around not knowing their priorities. You have to start there. Before you get your to-do list, our priorities is to things that are most important to us right now. Present, not serving is we really only have to bandwidth of पहले स्पीड मैथ देख लेते हैं, इसको मार्क फॉर रिव्यू लगा देते हैं। ये रॉन्ग नंबर सीरीज 65 127 219 348 517 ठीक है। यहाँ पे 7 5 2 12 में से 6 जाएगा 6, 9 में से 2 जाएगा 9 में से 7 जाएगा 2, 21 में से 12 जाएगा 9, 8 में 18 में से 9 जाएगा 9 हो जाएगा, 13 3 में से 1 जाएगा 2 हो जाएगा, 3 में से 2 हो गया, ये हो जाएगा 7 9 हो जाएगा, यहाँ 1 यहाँ पे हो गया, तो 65 92 129 मतलब, और यहाँ पे हो जाएगा 9, यहाँ पे 6 1 ठीक है। इसका फिर से डिफरेंस करेंगे तो 30, यहाँ 37 तो यहाँ होना चाहिए था 37, 7 का आगे बढ़ रहे हैं तो 37 3 40 44 होना चाहिए था, मतलब 517 50 62 50 62 82 102 में 154 225 ठीक है। ये 12 यहाँ से 20 ये 30 4 में से 2 ये 32 यहाँ पे 5 में से 4 जाएगा 1 15 7 22 7 हो जाएगा। फिर डबल डिफरेंस 8 10 12 यहाँ 14 होना चाहिए था तो ये 71 नहीं आएगा, मतलब 225 गलत है। 71 98 71 98 162 294 503 ठीक है। ये हो जाएगा 8 में से 1 जाएगा 7, 9 में से 7 जाएगा 2 27, ये हो जाएगा 2 में से ये हो जाएगा देखो 2 में से 8 जाएगा मतलब 4 12 8 4 12, ये हो जाएगा 15 में से 9 जाएगा 6 64 ठीक है। 4 में से 2 जाएगा 2 हो जाएगा और 29 13 हो जाएगा यहाँ पे ठीक है। यहाँ पे इतना 27 64 132 209 मतलब ये 2 का 3 का 3 3 9 30 27 3 का क्यूब है 4 का क्यूब है, यहाँ 5 का होना चाहिए, मतलब 294 आंसर है। 189 192 199 225 273 354 ठीक है। ये हो जाएगा 3, यहाँ से हो जाएगा 92 7 99 7, यहाँ से हो जाएगा 24 1 25 ठीक है। यहाँ से 25 यहाँ 9 हो गया, 26 में से 22 हो गया 4 हो गया। ये देखो इसका आंसर होगा 192, यहाँ पे है ये 7 का स्क्वायर, ये 9 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 192 गलत हो जाएगा। 489 489 476 463 443 421 394 ठीक है। ये हो जाएगा 9 में से 6 जाएगा 3, 8 में से 7 जाएगा 1 ठीक है। 6 में से 3 जाएगा 3, ये भी 13 ठीक है। 63 3 66 10 76 13 हो गया। ये हो जाएगा 443
3 में से 3 जाएगा 0, 6 में से 4 जाएगा 2, माइनस का 20 है। फोर 63, पता नहीं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कुछ, तो इसको मैं मार्क फॉर रिव्यू लगा दे रहा हूँ बाद में। और भी कुछ स्पीड मैथ का, इसको भी मार्क फॉर रिव्यू लगा रहा हूँ। पहले देख ले रहा हूँ स्पीड मैथ का और कुछ क्वेश्चन है क्या। ये देखो 15 इंटू 60, ठीक है, 90 हो जाएगा। 90, 900, 900 माइनस हो जाएगा, 35 दूनी 70, 700, मतलब 200 आंसर है। 200, 200 भागा 400 भागा 2, इसका सी ऑप्शन है। ये हो जाएगा कितना, 18, 18, 8, 44, 144, 144 हो जाएगा। और 25, 25 से 625 परसेंटेज, 2 शून्य कट गए, 625 इज इक्वल टू हो जाएगा 63, 63 यहाँ से 144 माइनस करेंगे, 5 में से 4 जाएगा 1, 12 में से 4 जाएगा 8, ये 4 में 5 में से 1 जाएगा 4, 481, इसमें से 63 माइनस करेंगे तब 8, 1, 4, 418, 418 माइनस का ये हो जाएगा 570 इंटू 90, तो 57 इंटू 9 प्लस 25, 75, 3, 9 7 63 की 3 बाकी 6, 9 5 45, 5 50 51, 516 आंसर। ये हो जाएगा 6 36 का 216, 216, ये हो जाएगा 33, 33 से 1089, 1089 माइनस 34, ये हो जाएगा 5, 5, 1053 माइनस 216 हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 4 में से 1 जाएगा 3, 800, 29, 29 से 841, 27, 27 से 729 माइनस 9, 720, 720 भागा 10, 76, 720 भागा 10 ना 72। मेटालिक स्फेयर नहीं। अब सीधा चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। ये पता नहीं इतना स्क्रॉल कैसे होता है भाई। पहले मैं डेटा नोट कर ले रहा हूँ, क्योंकि इतना स्क्रॉल करने में जितना टाइम होगा उतना में तो डेटा नोट हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटेड इन P1 है क्या, मंथ जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, जरूर अंतर जून भी होगा, जून हाँ, जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून, ठीक है। और है क्या P1 P2, P1 P2 P3 भी है क्या, नहीं। ये हो जाएगा 1800, ये हो गया कितना है, 200 का गैप है, तो मतलब 25 25 का 25 नहीं 50 50, ठीक है। ये हो जाएगा 12 50, फिर में हो जाएगा ये, ओ सॉरी पहले इसको देखना है, ये 600, ये हो जाएगा 12 50, ठीक है। ये हो गया 3 50, ये हो गया 800, ठीक है।
ये हो गया 300, ये हो गया 600, ये हो गया 1000, ये हो गया 1200। ठीक है, ये इस वाले लाइन से एक ऊपर, एक तो ये तो मिड है, मिड में है, मतलब ये 900 हो गया। ये इससे नीचे था कितना, 50, 150 नीचे था ना, 50 नीचे था, 750 हो गया। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटेड बाय P1 इन अप्रैल, P1 इन अप्रैल हो गया 1000, इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटेड P1 इन जून बाय P1 इन जून। P1 जून में है 750, हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 15, 1, 40%। Find the ratio of the total number of pages printed by P1 in January. P1 in January 1000 and printed by P1 in January to the P2 in March. P2 in March हो गया 800, मतलब 10, 8, 5000, 5000 आंसर। Find the total number of pages printed by P2 in July. P2 in July हो जाएगा, अरे ओ, P2 in July, if the sum of the total number of pages printed by P2 in May, June, July is 3500, 3500 मई जून जुलाई, तो मई जून का 12, 8, 20, 21, 2100 माइनस करेंगे 1400 आंसर आएगा। if the total number of pages printed by P3 in April is 250 less than the total number of pages P1 plus P2 in April, P1 plus P2 हो जाएगा 900, 900 लेस बोला है ना, 900 माइनस 250 हो जाएगा 650, 650। टोटल नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटेड बाय P1 इन जुलाई एंड अगस्त टुगेदर, P1 जुलाई अगस्त टुगेदर, जुलाई अगस्त तो दिया नहीं है, टुगेदर इज 20% मोर देन द पेजेस प्रिंटेड बाय P1 इन फरवरी, P1 इन फरवरी 600 का 20% मोर, मतलब 120, मतलब 720 हो गया। Find the total number of pages printed by P1 in July, August together is 720. Find the difference between the total number of pages printed by P1, P2 in March. P1, P2 in March 8 3 11 11 50, ओह डिफरेंस निकालना है ना, 400, 450। इसमें दिया है table shows that the television manufactured number of the television sold and the installation done by various out of the total number of manufacturers, only some are sold, out of the total sold some get installed। ठीक है, इसका दिया फैक्ट्री, इसका भी टेबल बना दे रहा हूँ, फैक्ट्री ABCDE है, मैन्युफैक्चर M, सोल्ड एज, इंस्टॉलेशन I। ठीक है, ए, इसका डेटा कहाँ से निकलेगा क्वेश्चन से। इफ 80% ऑफ मैन्युफैक्चर्ड टेलीविजन गॉट सोल्ड बाय फैक्ट्री ए, इसका 80% सोल्ड किया गया है, 800 का 80%, नहीं वो 80%, 20%, 80 को 60 माइनस कर दो। इफ 80% ऑफ मैन्युफैक्चर्ड टेलीविजन गॉट सोल्ड बाय फैक्ट्री ए, देन द फाइंड द 80%, यहाँ से तो 80 64 6400 सोल्ड हुआ है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टेलीविजन, difference between the number of television sold and the number of installation done by factory है 2200, 6400 माइनस 2200, 4200 आंसर आ रहा है। If the ratio of manufactured television and sold television of factory B, manufactured
सोल्ड, बी का रेशियो है 3:2 एंड द सम ऑफ मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड टेलीविजन इज ऑफ फैक्ट्री बी इज 12,000। 12,000, 5 का वैल्यू 12,000 हो गया। 5 का वैल्यू 12,000, 5 दूनी 10, 5 4 5 20, 2400। 2400। तो पूछा फाइंड द नंबर ऑफ मैन्युफैक्चर्ड टेलीविजन बाई फैक्ट्री बी। मैन्युफैक्चर्ड पूछा है तो 3 का वैल्यू 24, 48, 24, 7200। If factory is manufactured 2500 more television, the television sold, टेलीविजन सोल्ड है 11,000 और 2500। फैक्ट्री ई मैन्युफैक्चर्ड 2500 मोर देन द टेलीविजन सोल्ड। 2500 अगर इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5, 13,500 and 25% manufactured television get installed and find the number of installed television। 25% ना सीधा सीधी 4 से भागा दे, 4 दिया 12, 4 दिया 12, 3 0, 4 7 चौक 28, 4 5 20, 33 75 आंसर। Find the number of sold television if 80% of manufactured television goods sold by the factory D। मैन्युफैक्चर्ड का 80%, 80% तो 22 दूनी 4400, 22,000 माइनस 4400 कर दो तो 006, 21 में से 17,600। Find find the number of the television remains unsold by factory D। remains unsold by factory D if the difference between sold and unsold television is sold and unsold television is 5,000। तो टोटल 18,000 बचा। फाइंड sold unsold, assume he sold majority of his manufactured television। majority of his 18,000 हो जाएगा। 9,000, ये भी 9,000। 9,000 सोल्ड अनसोल्ड के बीच में कितना है डिफरेंस? 5,000 का ना। 5,000 अगर माइनस कर देंगे तो हो जाएगा कितना? 17,000 ना। 17 5 23, 17,000 हो जाएगा। 8,500। assume that the sold majority of his manufacturing television 8600 हो जाएगा। 8500 में तो इक्वल हो जाएगा। पूछा किसका था भाई? टेलीविजन अनसोल्ड। अनसोल्ड 8500 से कम होगा ना। 8500 से कम 82 50, 82 40, 82 30। There are integers a, b, c such that the ratio of sum of the value of a plus b, a and b to the sum of the value of b or c is इतना and a or c is इतना। In a class 30 students, the ratio of the number of boys to girls is
बॉयज़ टू गर्ल्स इज 3:2। 30 है ना, 3 2 5 5 6 6 3 18 6 दूनी 12 हो गया, ठीक है। सम स्वीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंग देम, एवरेज नंबर ऑफ स्वीट रिसीव्ड बाई ईच बॉयज इज 40, 40 और 42 रिस्पेक्टिवली। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्वीट डिस्ट्रीब्यूटेड। 18 36 38 54 18 72 720, ये हो जाएगा 420, 42 दूनी 84, 40। वो सीट में बाद जो आ गया था आंसर यार, कोई नहीं। सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग अराउंड सर्कुलर टेबल फेसिंग इनसाइड द सेंटर, ठीक है। सर्कल एक दो, ठीक है। 2 पर्सन सिटिंग बिटवीन बी एंड जी, 1 2, बी और जी इधर, एक में बी, 1 2 जी इधर, ठीक है। जी हु सीट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ जे, जे के फोर्थ राइट में जी है, जे के फोर्थ राइट में जी। अब देखो जे के फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ राइट में जी है, सेकेंड थर्ड, जे के फोर्थ राइट में जी, ठीक है। 5% सीट बिटवीन एफ एंड के, एफ और के बीच में 5% है। के होल सीट्स इमीडिएट राइट, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, बी के इमीडिएट लेफ्ट में के है। देखो बी के इमीडिएट लेफ्ट में के, तो इस वाले में तो ये पॉसिबिलिटी कट गया क्योंकि बी के इमीडिएट लेफ्ट में जे बैठा है। बी के इमीडिएट लेफ्ट में के यहाँ पे हो गया, के 5 छोड़ के एफ हो जाएगा। अभी अपने बैठा सकते हैं, कौन साइड से है पता नहीं। आर सीट 6 टू द लेफ्ट ऑफ जे, आर सीट 6 टू द लेफ्ट ऑफ जे, जे के फर्स्ट फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स यहाँ पे, ठीक है। 3% सीट बिटवीन एफ एंड जे, एफ और जे के बीच में बोला है टोटल 3%। 1 2 3 इधर तो नहीं होगा, इधर होगा, ठीक है। वेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ जी, अब बोला भी है लेफ्ट ऑफ जी, सही है। अब यहाँ पे 5% एक यहाँ पे, ठीक है। वो अमंग द फॉलोइंग सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, एफ के सेकेंड लेफ्ट में है रीन। बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉल्स रिगार्डिंग रीन। 3% सीट बिटवीन के एंड आर, के और आर के बीच में, के और आर के बीच में 3%, 1 2 3, सही है। काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ आर, आर के लेफ्ट से 3, सही है। आर सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, बी के थर्ड लेफ्ट में आर, गलत है, थर्ड राइट में। आर सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, एफ के इमीडिएट नहीं, एक छोड़ के, मतलब ओनली वन फॉलो। हाउ मेनी पर्सन सीट बिटवीन के एंड जे, के एंड जी, के और जी के बीच में 1 पर्सन है। बस 3 ही क्वेश्चन। 7 persons P Q R S T U V are born in different month, January March April May June August and September. Each of them was born in different dates, 3 8 11 15 17 24 30, ठीक है। मंथ है टोटल कौन कितना, चलो नाम नहीं लिख रहे हैं। जैन, मार्च, अप्रैल, मई, जून, अगस्त, सितंबर, ठीक है। और डेट साइड में लिख दे रहा हूँ इंक्रीजिंग ऑर्डर में, 3 8 11 15 17 24 30, ठीक है। अब हो जाएगा 4% बॉर्न बिटवीन आर यू, आर और यू के बीच में 4% है। यू हुज बॉर्न, हुज बर्थ इज 17 पे बॉर्न हुआ है। इस वॉज बॉर्न इमीडिएट बिफोर टी, टी से इमीडिएट बिफोर, ठीक है। आर वॉज बोर्न इन द मंथ हैविंग 31 दिन, आर 31 डेज वाले में है, ठीक है। ओनली 1% वॉज बोर्न बिटवीन यू एंड पी, यू और पी के बीच में 1 है, ठीक है। बी वॉज बोर्न आफ्टर क्यू, क्यू के बाद भी है। क्यू हुज बर्थ नंबर इज ऑड नंबर, बर्थ डेट इज ऑड नंबर,
हॉट डेट पे पैदा हुआ ये। पी इज नॉट बॉर्न इन द मंथ ऑफ 31 डेज। पी 31 दिन वाले में नहीं है, मतलब पी 30 वाले में है। ठीक है। द बर्थ ऑफ टी इज क्यूब नंबर। द बर्थ ऑफ टी इज क्यूब नंबर। इसमें से क्यूब तो है, क्यूब तो एक ही है जो कि 8 है। ठीक है, तो 8 में हो जाएगा ये। पी एंड एस वेयर बोर्न ऑन 15/3। P15S3। P15S3। ठीक है। ठीक है। द वन हुज बर्थ डेट इज 8 इज नॉट बोर्न इन मे। 8 वाला मई में नहीं है। बर्थ डेट ऑफ आर इज नॉट 24। आर इज नॉट 24। ठीक है। अब देखिए इसमें हुआ था क्या, यू अगर एक में हम लोग देखो आर 4 छोड़ के यू है, तो आर को सबसे ऊपर लेते हैं, 1 2 3 4 छोड़ के यू यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद आर को उसके जस्ट नीचे वाले में यहाँ पे ले सकते हैं आर। देखो आर यहाँ पे 4 छोड़ के पी यहाँ पे हो जाएगा। एक पॉसिबिलिटी में पहले ये ले रहे, दूसरे में यू को यहाँ रखते हैं, आर को यहाँ ले रखते हैं। ठीक है। यू एक छोड़ के पी, यू एक छोड़ के पी, इस वाले में यू एक छोड़ के पी सही है। और बोला है पी 31 डेज में है, पी 31 में है। इस वाले में क्या बोला था, पी इज नॉट बोर्न इन द मंथ ऑफ 31। पी 31 वाले में बोर्न नहीं हुआ है, ये मई में हो गया, तो ये पॉसिबिलिटी हमारा गलत हो गया। पी यहाँ पे देखो अप्रैल में हो रहा है, ये सही है, इसी में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। पी के सामने 15। ठीक है। अब टी से इमीडिएट ऊपर एस है, टी से इमीडिएट ऊपर एस यहाँ पे है, टी क्यूब है मतलब टी 8 है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये बोला है, यहाँ पे तो इवन होगा नहीं, ये ऑड हो जाएगा। यहाँ पे 24 होगा नहीं, 24 बचा, 24 यहाँ पे हो गया, तो एक जो बचा है वो यहाँ पे हो जाएगा। इफ आर इज रिलेटेड टू अगस्त, आर इज रिलेटेड टू अगस्त, in the same way q is related to march। 4 of the 5 पेयर आर लाइक ना, क्यू पी साथ में है, आर भी सेम है, एस टी भी सही है, पी एस ये भी सही है, यू आर डिफरेंट है। भी was born on September 24। as many persons born between क्यू आर के बीच में 3 है, तो टी यू के बीच में 3 हो जाएगा। पी was born immediately after, ये तो गलत है भाई। ओह ये सही है, पी was immediately born after क्यू जो कि मार्च में। some green are black, some black are blue, some नहीं है, all black are blue है, shit, all black are blue, some blue are yellow, ठीक है। some blue being green, some तो डेफिनेट है, डेफिनेट के साथ गलत हो जाएगा। some yellow are not blue, some yellow are blue तो है, नॉट ब्लू का पता नहीं, तो ये हो जाएगा neither one nor two।
नो हिंदी इज पंजाबी, नो हिंदी इज पंजाबी, फ्यू पंजाबी इज इंग्लिश, ठीक है। सम इंग्लिश इज मैथ, ये भी सही है। सम इंग्लिश इज नॉट हिंदी, सम इंग्लिश इज नॉट हिंदी, सही है। नो पंजाबी बीइंग इंग्लिश, नो पंजाबी बीइंग इंग्लिश, डेफिनेट के साथ ये गलत हो जाएगा। ओनली वन फॉलो। सम क्यू इज आर, सम क्यू इज आर ऑल आर इज एस, ठीक है। फ्यू एस इज टी, फ्यू एस इज टी, सम आर बीइंग टी, सम आर बीइंग टी, कांट से प्लस पॉसिबिलिटी सही हो जाएगा। सम क्यू इज टी, सम क्यू इज टी, कांट, तो ओनली वन फॉलो इसका हो जाएगा। नो जीन्स इज शर्ट, नो जीन्स इज शर्ट, नो शर्ट इज टॉप, नो जीन्स इज शर्ट, ठीक है। नो शर्ट इज टॉप, नो शर्ट इज टॉप, और फ्यू टॉप आर ड्रेस, फ्यू टॉप इज ड्रेस, ठीक है। नो जीन्स इज ड्रेस, नो जीन्स इज ड्रेस, कांट से। सम ड्रेस इज नॉट शर्ट, सम ड्रेस इज नॉट शर्ट, सही है। ओनली सेकेंड फॉलो। ये हो जाएगा टू पीपल, पायल सीमा मूविंग डिफरेंट डायरेक्शन, डायरेक्शन डिस्टेंस लास्ट में करेंगे, इसको रहने दे देंगे। ये हो जाएगा 4 2 5 3 1 6 4 2 5, ठीक है। जिसमें बोला है इफ ऑल द डिजिट्स आर इंक्रीज्ड बाई 3 देन हाउ मेनी नंबर्स आर ग्रेटर देन 7। 7 3 से बढ़ेगा, तो मतलब ग्रेटर देन 7 के लिए आपको 5 होना चाहिए, 5 से एबव। 5 से एबव, देखिए 5 होना चाहिए, तो 5 और 5 से एबव 5 6, ठीक है। टोटल 3 नंबर हो रहा है। तो बोला है कि ट्वाइस नंबर, तो ट्वाइस तो एक का ही है ना, विल अपीयर ट्वाइस इन द, ट्वाइस तो एक ही नंबर है जो ट्वाइस आ रहा है। ए फैमिली 8 members Q P Q R S T U V W consist of 3 generations having 3 married couples, 3 married couples, इसको फिलहाल रहने दे रहे हैं, इसको देखते हैं। 8 people work in company and their designation in decreasing order are BOD, BOD, CEO, PO. Every one has different fields, commerce, lawmaking, marketing, resource and sales. The one from medicine is senior to the one from, अब टोटल है 8 ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। BOD, CEO, COO, PD, VP, AVP, CM, GET, ठीक है। डिफरेंट फील्ड रहने दे रहे। द वन फ्रॉम मेडिसिन इज सीनियर टू द वन फ्रॉम लॉ, लॉ से सीनियर है मेडिसिन वाला, ठीक है। द वन हु इज लैंग्वेज इज इमीडिएट सीनियर टू द वन फाइनेंस, फाइनेंस से इमीडिएट ऊपर लैंग्वेज हो जाएगा। ओनली 1% रैंक्ड बिटवीन कॉमर्स एंड रिसोर्स, कॉमर्स और रिसोर्स के बीच में एक हो जाएगा। 5 पीपल रैंक्ड बिटवीन द वन हु इज कॉमर्स एंड लॉ, कॉमर्स और लॉ के बीच में 5 है, 1 2 3 4 5, ठीक है। The one who resources is ranked, the one from resources ranked somewhere below VP, VP से below है रिसोर्स। चलो एक में रिसोर्स को यहाँ पे ले रहे हैं, एक में रिसोर्स को यहाँ, एक में रिसोर्स को यहाँ, 3 हो जाएगा। 3 people ranked between the one मार्केटिंग एंड मेडिसिन, मार्केटिंग और मेडिसिन के बीच में 3 है,
रिसोर्स हो गया, रिसोर्स एक छोड़ के कॉमर्स हो जाएगा, रिसोर्स एक छोड़ के कॉमर्स, रिसोर्स एक छोड़ के कॉमर्स, ठीक है। कॉमर्स 5 छोड़ के लॉ, कॉमर्स 1 2 3 4 5 छोड़ के लॉ, यहाँ पे कॉमर्स यहाँ पे हो गया 5 छोड़ के लॉ, 1 2 3 4 5 छोड़ के लॉ जगह नहीं है, ये गलत हो गया। रिसोर्स कॉमर्स, कॉमर्स 5 छोड़ के 1 2 3 4 5 छोड़ के लॉ के लिए जगह नहीं है, ये भी कट गया, यही एक बचा है, लॉ हो गया। और बोला है फाइनेंस से इमीडिएट ऊपर लाइन, देखो अब देखो फाइनेंस से 2 जगह हमको एक साथ चाहिए खाली, यहाँ देखो फाइनेंस से इमीडिएट ऊपर लैंग्वेज, फाइनेंस से इमीडिएट ऊपर लैंग्वेज यहाँ, और बोला है मेडिसिन 3 छोड़ के मार्केटिंग, मेडिसिन यहाँ पे 1 2 3 छोड़ के मार्केटिंग यहाँ पे, ठीक है। और लॉ से पर मेडिसिन है, लॉ से पर मेडिसिन भी सही है। The one from is the COO, COO is language वाला CEO. Who among the following is ranked above PD? PD से above रैंक करता है मेडिसिन, सही है। सेल्स नहीं, मार्केटिंग, मार्केटिंग नहीं, ओनली मेडिसिन हो जाएगा। The one from is the top designation, top designation है मेडिसिन वाला। How many people ranked between the one from sales and marketing? Sales and marketing हो जाएगा, सेल्स और मार्केटिंग के बीच में 1 पर्सन। इसको फिलहाल मार्क फॉर रिव्यू कर दे रहे हैं। एल ग्रेटर देन डी, एल ग्रेटर देन डी तो नहीं होगा, एफ ग्रेटर इक्वल टू एल, एफ ग्रेटर डी, ये भी नहीं होगा, तो इसका आंसर नीदर हो जाएगा। आर ग्रेटर देन जी, आर ग्रेटर देन डब्लू और डब्लू ग्रेटर देन जी, सही है। एफ ग्रेटर देन पी, एफ ग्रेटर देन पी नहीं होगा, ओनली वन फॉलो। डब्लू ग्रेटर देन पी, डब्लू ग्रेटर देन डब्लू इक्वल टू जी, और जी ग्रेटर देन पी नहीं होगा। एफ ग्रेटर देन ई, एफ ग्रेटर देन जी और जी ग्रेटर देन ई, सही है, ओनली सेकंड फॉलो। जे ग्रेटर देन क्यू, जे ग्रेटर देन एन और एन ग्रेटर देन क्यू, सही है। एच ग्रेटर देन आर, एच ग्रेटर देन एन और एन ग्रेटर देन आर, इसका बहुत हो जाएगा। सी, ये तो आइदर पहले ही है, इसको ऐसे रिस्क थोड़ा बहुत ज़रूरी है। इसको 1 नंबर का इसको रहने दे रहा हूँ। टोटल 12 फ्रेंड्स ई एफ पी क्यू आर एस टी यू आर सिटिंग इन 2 पैरेलल और फेसिंग ईच अदर, ठीक है। टोटल 12 पर्सन 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। जिसमें बोला ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ आर सिटिंग वन फेसिंग नॉर्थ, ए बी सी डी वाला नॉर्थ फेस कर रहा है और पी क्यू आर एस टी यू वाला साउथ फेस कर रहा है, ठीक है। डी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ एफ, एफ हु फेसेज आर, एफ हु फेसेज आर, डी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ एफ, एफ के सेकंड राइट डी, सी इज द इमीडिएट नेबर फेसेज एस, सी इज इमीडिएट नेबर एस को फेस कर रहा है, सी के इमीडिएट नेबर एस को फेस कर रहा है। यस हु डज नॉट सिट एट एक्सट्रीम इंड, यस इंड पे नहीं है। क्यू फेसेज ए, क्यू फेस कर रहा है ए को। नंबर ऑफ पर्सन
number of people towards the right of R is more than the number of people to the left of R. Neither U nor is adjacent to T. T के बगल में कौन कौन नहीं है? U और S नहीं है. T who faces the person sits second to the right of E. E के second right को first second right को फेस कर रहा है T. ठीक है. बोल रहे कि आर के राइट में ज़्यादा पर्सन है, तो आर को यहाँ पे लेते हैं. आर के सामने एफ है, एफ के सेकेंड राइट में डी है. ये हो गया. ठीक है. यस इंद पे नहीं है, सी नहीं. यस को अगर यहाँ पे बैठाते हैं सी हो सकता है. ओह शिट मैन. दोस्तों मॉक सबमिट हो गया है. आइए स्कोर देख लेते हैं. इस मॉक में मैंने टोटल 65 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाया था, जिसमें से 52 क्वेश्चन करेक्ट हुए, 13 क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं. ओ माय गॉड. और मेरा स्कोर बना ओनली 48.75. क्या ही बोलूँ, एक्यूरेसी के तो लंका लग गई इसमें. दोस्तों अगर सेक्शन वाइज देखें तो इंग्लिश में मैंने टोटल 23 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, जिसमें से 14 क्वेश्चन करेक्ट हुए, 9 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए और मेरा स्कोर बना ओनली 11.75. वहीं क्वांट सेक्शन में मैंने टोटल 20 क्वेश्चन किए थे, जिसमें से 18 क्वेश्चन करेक्ट हुए, 2 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए और क्वांट्स में मेरा स्कोर बना ओनली 17.50. वहीं लॉजिकल रीजनिंग में मैंने टोटल केवल 22 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाया था, जिसमें से 20 क्वेश्चन करेक्ट हुए, 2 क्वेश्चन इनकरेक्ट हो गए और रीजनिंग में मेरा स्कोर बना ओनली 19.50. ये बहुत ही गंदा स्कोर है दोस्तों अगर मॉक की लेवल का बात करूँ तो मॉक का लेवल बहुत हार्ड नहीं है, बट पता नहीं मतलब बट थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है. पता नहीं इंग्लिश के एक्यूरेसी की वजह से इतना स्कोर नीचे जाने का मेन रीज़न इंग्लिश ही है. बट कोई नहीं, देखते हैं इसका जब रिजल्ट जारी होगा तब सॉल्यूशन एनालाइज करके देखेंगे कहाँ गलती हुई है. दोस्तों अगर आपने ये मौका अभी तक अटेम्प्ट नहीं किया है तो जाइए, जाके अटेम्प्ट कीजिए. अटेम्प्ट कर लेने के बाद वापस आकर आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा. और आप लोग में से जिन्होंने भी ये मॉक ऑलरेडी अटेम्प्ट कर लिया है वो भी अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा. थैंक यू. हैव ए नाइस डे. मिलते हैं किसी और वीडियो में.